Friends, welcome to my channel. Let's understand the term tax. Basically, in India, there are different types of taxes like wealth tax, professional tax, entry tax, gift tax, toll tax. And by understanding these different varieties of taxes, we will feel so much confusing and challenging. But it's not actually. You just need to put your mind into that, and everything you will get into your pocket. Through the course of this video, I shall elaborate a few fundamentals that you need to know. Let's first understand the meaning of the term tax. Tax means what? It's a financial obligation that you need to pay to the government and government will utilize for the purpose of social welfare activities. Means a contribution that you need to pay to the government and government will utilize for the purpose of social welfare activities. What do you mean by social welfare activities? Government utilizes this tax revenue in the social welfare activities like defense, hospitals, construction of roads, transport facilities and many more. Basically, in India, there are two different types of taxes like direct tax and indirect taxes. For example, income tax department is the best example for direct tax and GST is the best example for indirect taxes, which the GST came into existence on 1/7/2017, that is 1st July of 2017. What do you mean by the direct taxes and indirect taxes? Direct taxes means these are paid directly by the individual or entity to the central or state government. For example, income tax. इनकम टैक्स मीन्स वॉट, जैसे जैसे तुम इनकम अर्न करोगे वैसे वैसे तुम टैक्स आके गवर्नमेंट को पे करोगे, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब रेट्स. फिर आता है कॉरपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स. Next is indirect taxes. These are paid by the individual to the government and subsequently the tax burden is passed on to the different individual. For example, GST. जीएसटी का बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं. चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो चॉकलेट को बनाता है. जीएसटी उसके ऊपर लेवी हो जाता है बट अल्टीमेटली टैक्स बर्डन किसके ऊपर होता है? जो अल्टीमेटली उस चॉकलेट को कंज्यूम करता है उसके ऊपर टैक्स बर्डन लेवी हो जाता है. Next example is value added tax, custom duty, excise duty, security transaction tax, dividend distribution tax, and sales tax. Let's understand it one by one. Income tax. Income tax is a direct tax that a government levies on the income of its citizens. Corporation tax matlab company tax. It is imposed on the net income of the company. कैपिटल गेन टैक्स, जैसे हम लोग सेल्स ऑफ शेयर्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स के ऊपर हमको जो भी गेन अराइज होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगती है. गेन्स विच इज़ रियलाइज ऑन द सेल ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रीशियस मेटल्स, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. प्रोफेशन टैक्स. ए प्रोफेशन टैक्स अर्निंग ऑन द इनकम फ्रॉम सैलरी और फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन लाइक सीए, डॉक्टर और लॉयर. जैसे हम लोग आके सैलरी या प्रोफेशन के ऊपर इनकम अराइज होता है उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है. प्रॉपर्टी टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स विच इज़ जनरली लेविड ऑन द रियल एस्टेट. रियल एस्टेट के ऊपर लेवी होता है, प्रॉपर्टी जिनके पास होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है. रोड टैक्स. टैक्स टू बी पेड ऑन ए व्हील्ड व्हीकल टू बी यूज्ड इट ऑन ए पब्लिक रोड. पब्लिक रोड के ऊपर हमको कोई भी व्हील्ड व्हीकल यूज़ करना होता है उसके ऊपर रोड टैक्स पे करना होता है. नेक्स्ट आता है स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी आता है टैक्स लेविड ऑन ए सिंगल प्रॉपर्टी परचेज और डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक्स, रिसिप्ट्स, मैरिज लाइसेंसेस या लैंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करनी होती है. नेक्स्ट आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी. जीएसटी बेसिकली किसके ऊपर लेवी होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. इसको कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है. वैल्यू एडेड टैक्स रिप्लेस हो चुका है, अबॉलिश हो गया इंडिया में, ये रिप्लेस हो गया जीएसटी के साथ. नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटी. टैक्स विच इज़ इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं, ओनली गुड्स के ऊपर जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है. नेक्स्ट आता है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी भी अबॉलिश हो गया है और वो जीएसटी के साथ रिप्लेस हो गया. नेक्स्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि टैक्स विच इज़ पेबल इन इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्टेड थ्रू आरएससी. आरएससी मीन्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? चाहे वो डेट सिक्योरिटीज़ हो सकता है या इक्विटी सिक्योरिटीज़ हो सकता है या डेरिवेटिव्स भी हो सकता है. डेट सिक्योरिटीज़ मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं. इक्विटी सिक्योरिटीज़ मतलब क्या होता है? लिस्टेड शेयर्स, स्टॉक्स. डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब आते हैं.
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडियन कंपनीज अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड पेड टू द कंपनीज इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के ऊपर, उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड जब भी डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, उसके ऊपर डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी जनरली रिप्लेस हो चुका है जीएसटी के साथ। यहाँ पे 3 वेराइटीज़ ऑफ टैक्सेस जो होता है वो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है। पहले है एक्साइज, फिर आता है सेल्स टैक्स, फिर आता है वैट वैल्यू एडेड टैक्स, फिर एक और सर्विस है सर्विस टैक्स। जो ये सारी टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं। 1/7/2017 को वन नेशन वन टैक्स आया था। So hope you understand my video. If you like my video, please give a thumbs up and subscribe to my channel to get my new updated videos. Thank you so much.